Assalamu alaikum students and my dear fellows. Today our discussion topic is about present indefinite tense, active voice and passive voice. But before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Let's start our discussion. Okay students, active voice and passive voice. First of all, you should know about what is difference between active voice and passive voice. But before I'm telling you about what is active voice and passive voice, first of all I will tell you how many tenses have passive voice. We know there are total 12 tenses, and it is we can say that there are only 8 tenses have passive voice sentences. Now which tense doesn't have passive voice? We know 12 tenses are there: present indefinite, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. These are 4 tenses: past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Uh, these are also 4 tenses. Now these are 8 tenses: future indefinite, future continuous, future perfect tense, and future perfect continuous tense. These are also 4 tenses. And now these are total 12 tenses. And which tenses don't have passive tenses? First of all, you should always remember that all the perfect continuous tenses don't have passive voice sentences. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense. Which are these sentences where we are using since or for? And these are now 9 tenses are remaining. Future continuous tense doesn't have passive voice. Which is future continuous tense? He will be going to school. She will be eating food. I shall be playing cricket. These sentences shows that these sentences are of future continuous tense. Future continuous tense doesn't have passive voice tenses. Okay, let's start our discussion about active voice and passive voice. I hope so you will understand all the tenses which I have told you. These tenses have passive voice and these tenses don't have passive voice sentences. एक्टिव वॉइस इन उर्दू फेल मारूफ। एक्टिव वॉइस सिक्कों में किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव फॉर्म में हमें नजर आता है। अली लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। मदरजा बाला फिक्रे में काम के करने का जिक्र है और सब्जेक्ट यानी अली काम करने वाला है। ओके। पैसिव वॉइस जिन्हें उर्दू में फेल मजहूल कहते हैं। पैसिव वॉइस फिक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस फिक्रों का सब्जेक्ट ही दरअसल पैसिव वॉइस फिक्रों में सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि खत अली से लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय अली। मदरजा बाला फिक्रे में काम करने का नहीं बल्कि काम होने का जिक्र है। इस फिक्रे में अ लेटर एक सब्जेक्ट है और रिटर्न एक काम है। अब समझने की बात यह है कि मदरजा बाला फिक्रे में काम का लिखने का काम सब्जेक्ट यानी अ लेटर नहीं कर रहा, इसमें लिखने का काम हो रहा है, लिहाजा वो इस फिक्रे में मौजूद है। सब्जेक्ट यानी अ लेटर को हम रिसीवर ऑफ एक्शन कहेंगे। बस ऐसे फिक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो वो पैसिव वॉइस फिक्रे कहलाते हैं। यानी कि डियर फेलोज, इस पॉइंट को आप इस तरह समझे कि एक्टिव वॉइस जो होता है उनमें सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में चला जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है। इसमें आपको मैं इजी वे में बताऊं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दीली ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म किया जाता है, यूज ऑफ बाय किया जाता है और यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। लेट स्टार्ट फ्रॉम हेयर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहाँ से आपको बहुत इजी वे में समझ आएगा। There are 5 rules to do active voice into passive voice. First of all, subject into object, object into subject, use of third form, use of by, use of helping verb। ठीक है, आपने ये 5 रूल्स हर जगह इम्प्लीमेंट करने हैं एक्सेप्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है। जितने भी 8 टेंसेस मैंने आपको बताए हैं जिसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल है, वहां पे आपने ये फॉर्मूला इजीली लगा देना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आना है। ठीक है, और यूज ऑफ थर्ड फॉर्म लगानी है, यूज ऑफ बाय और यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम। हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अगर ही शी इट होगा तो एस या एस का इजाफा होता है, आई वी दे यू के साथ, किसी किस्म का इजाफा नहीं होता। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब इसके पैसिव वॉइस बनाने हैं तो आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है इज, आर या एम। अब इज या आर या एम कहाँ लगने हैं वो ये देखिए। इज जो है ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे। आर जो है वी दे यू प्लूरल नाउन्स के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल नाउन्स कौन से है? आयशा और हिना। अब ये दो प्लूरल, एक से ज्यादा जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, चाहे वो 3 नाउन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, असलम, हिना, आयशा, ईट फूड। या आप देखिए 3 नाम हो गए, ये भी क्या है? प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन में सिर्फ सिंगुलर का मतलब ही एक है। और एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप दोबारा देखें माय डियर फेलोज। एक तो आपने सबसे पहले 5 रूल्स याद कर लेने हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, यूज ऑफ बाय का इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। और ये याद रखना है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज, अब आपने बाय का तो इस्तेमाल करना है, उससे पहले आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, जो कि है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। अब सब्जेक्टिव केस क्या है? ये प्रोनाउन का केस है। आई, ऑब्जेक्टिव केस मी। पॉजिटिव केस नॉर्मली यूज नहीं होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आपने ये येलो वाला और ब्लू वाला टेबल, दोनों कॉलम जो है येलो और ब्लू अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। आई को मी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने आई को जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की हालत में लिखना है तो उसके ऑब्जेक्टिव कंडीशन लिखेंगे। आई इंटू मी, यू इंटू यू, he into him, she into her, it into it, we into us, they into them, who into whom। ओके, यानी कि आई जो है आपने मी में चेंज करना है, यू को यू में ही रहना है, क्योंकि यू, योर, यू, इस तरह इनका टेबल बनता है। ही को हिम में चेंज करना है, शी को हर में चेंज करना है, इट को इट में चेंज करना है, वी को अस में चेंज करना है, दे को देम में चेंज करना है, और हु वर्ड आ जाए तो आपने हु में चेंज करना है। आपने इन
येलो और ब्लू वाले टेबल को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि इनके बगैर भी पैसिवाइज नहीं हो सकते। एक तो मैंने आपको बताया कि एक आपने वो 5 फार्मूलाज को अच्छे तरीके से जहन में रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ बाय, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम यूज हो रहा है, और ये आपने प्रोनाउन का टेबल अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। Let's start with the examples. I play cricket. I इसमें क्या है? सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आए हम। क्रिकेट आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है, क्रिकेट आपको नजर आ रहा होगा, और आई जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया, वो मी की कंडीशन में चला गया। स्टूडेंट, माय डियर फेलोज, हमने मी का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन आपने लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, तभी मैंने आपको कहा कि उस कॉलम, दोनों कॉलम्स को जो टेबल के हैं उनको अच्छे तरीके से आपने लर्न कर लेना है। आई की जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन थी वो मी थी, तो हमने मी लिख दिया। मी से पहले हमने क्या इस्तेमाल किया? बाय का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो भी हमारा रूल नंबर 4 था, ठीक है। हमने अभी 3 रूल्स का इस्तेमाल कर लिया है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, और क्या किया हमने? यूज ऑफ बाय, ठीक है। अब इन ऑल पैसिवाइज सेंटेंसेस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जितने भी टेंसेस हैं, 8 टेंसेस हैं, इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, तो आपने सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्ले की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लेड, प्लेड लिख दिया। अब यहाँ पर जो क्रिकेट आया है स्टूडेंट, अब ये बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और हम जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। हमने अब ऊपर आई को नहीं देखना, अब हमने क्रिकेट को देखना है। स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, या दूसरे डियर फेलोज आप लोग क्या करते हैं? आप ऊपर वाला देखते हैं सेंटेंस, आई के साथ क्या है? आई के साथ तो हम एम लगाते हैं, हम आप डायरेक्ट लगा देते हैं, तो वो फिर क्या होता है? टेंस जो है या पैसिवाइज जो है वो टोटली रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। टेंसेस में और पैसिवाइज में अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस किस्म का कोई मिस्टेक आ जाए तो वो टोटली रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। अब हमने क्रिकेट जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने किसका इस्तेमाल करना था? इसका इस्तेमाल करना था, तो हमने इज लगा दिया। आपने इसी तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कोई भी सेंटेंस आए। आगे हमने कह दूं वी ईट फूड, तो फूड इज ईटन बाय मी, अस, बाय अस आएगा, ठीक है। आपने इन्हीं फॉर्मूलाज को जहन में रखना है और इसी के तरीके से आपने इम्प्लीमेंटेशन करते रहना है। नेक्स्ट देखें, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब ये आ गया नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका बताया। अब क्रिकेट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, क्रिकेट शुरू में आ गया, बाय मी एंड पे आ गया, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेट लगा दी हमने, और हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट के साथ क्या लगाया हमने? इज लगा दिया। बस देखिए ऊपर आई के साथ डू लगा हुआ है, क्रिकेट के साथ हम इज लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह से सब्जेक्ट की जगह पर आया है वो है क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट ने बताया कि हमने अब इज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया। और इन ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नोट राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, राइट आफ्टर द मेन हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज नोट। अब इसके बाद इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब था, तभी हमने यहाँ पे इसके बाद हमने नोट का इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, डू आई प्ले क्रिकेट, अब इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? अब क्या आएगा? अब देखें,
डू जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हमने हेल्पिंग वर्ब की नीचे जगह छोड़ देनी है। पहले हमने वही तरीका अप्लाई करना है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ बाय, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये हमने यूज कर लिया, हमने इस्तेमाल कर लिया। अब ऊपर देखें क्वेश्चन मार्क था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था या इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, हमने ऊपर क्वेश्चन मार्क देखा तो नीचे भी हमने आराम से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्रिकेट शुरू में ले आए, फिर हमने देखा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो हम क्रिकेट क्या था, सिंगुलर नाउन था, तो हमने सिंगुलर नाउन के साथ हमने इस लगाना था, इस जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में लगा दिया हमने। इन ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब विल प्लेस फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहली जगह पर आएंगे, बिल्कुल वहां से स्टार्ट होगा पैसिवाइज, या फिर जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो था हेल्पिंग वर्ब इज था, तो इसको हम स्टार्ट में ले आए, तो हमने यहाँ पर इज लगा दिया, इसको सबसे पहले लेकर आए, ठीक है। फिर हमने क्रिकेट लिखा, प्लेड लिखा, बाय में लिखा, ऊपर क्वेश्चन मार्क था, हमने नीचे भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, तरह के सेंटेंसेस के तरीके बताए हैं पैसिवाइज करने के, एक सिंपल, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बताया है। सिंपल मैंने आपको बहुत सादा ही बताया, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ बाय। नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद आपने नॉट लगा देना है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपने इज एम आर को जो सब्जेक्ट के मुताबिक बन रहा है आपने शुरू में ले आना है, ठीक है। कोई भी टेंस आए स्टूडेंट्स, माय डियर फेलोज, कोई भी सेंटेंस आ जाए आपने ये फॉर्मूलाज को जहन में रखना है। एक वो जो टेबल है और जो फॉर्मूलाज हैं इनको जहन में रखना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इजीली पैसिवाइज करने आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन वाला है। अब WH क्वेश्चन कौन से होते हैं? WH वर्ड्स भी इनको कहा जाता है, विच, वेयर, हाउ। इन वर्ड्स को विच, वेयर, हाउ, व्हाट को WH क्वेश्चंस कहा जाता है, यानी कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपको ऐसे वर्ड्स नजर आ जाएं तो आपने सेंटेंस के स्टार्ट में, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या जो भी, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले आप लोगों ने इन वर्ड्स को लगाना होता है, ठीक है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड्स नजर आते हैं, सबसे पहले आपने आंखें बंद करके वाई, विच, वेयर, हाउ को लगा दें। हमने लिख दिया, ठीक है। सेंटेंस क्या था? वेयर डू आई प्ले क्रिकेट। वेयर को शुरू में लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें पता है, हमने चेंजिंग भी कर ली, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ बाय लिख दिया और इज भी लगा दिया। वेयर आप देखें और हमेशा याद रखें कि आपने WH क्वेश्चंस के बाद इज, एर, आर और एम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू टुडे। इसमें भी आप देखिए WH वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, राइट आफ्टर WH क्वेश्चन हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पैसिवाइज सेंटेंसेस में भी हम क्या करेंगे, जब WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस आएंगे आपके पास तो आपने WH क्वेश्चंस के फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। अब सब्जेक्ट वहां पे मैंगोज हो और आप लगा रहे हो इज, तो ये तो रॉन्ग है। मैंगोज होगा तो आर इस्तेमाल होंगे आप, ठीक है, या कोई दूसरा कोई वर्ड होगा तो आपने जो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पर आ रहा है, अब वही आपका सब्जेक्ट है, आपने ही उसको सब्जेक्ट को देकर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्यों नहीं खेलता हूँ।
इसमें भी क्या होगा, वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी, ठीक है, आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे मुझसे मिस्टेकनली प्लेट लिखा गया है फिफ्थ सेंटेंस में, आपने ईडी को रिमूव कर देना है, ठीक है। नीचे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेट लगा दी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, एरर्स आर एक्सपेक्टेड बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ही ईट्स मैंगो, अब देखें, ही ईट्स मैंगो, मैंगो जो है स्टार्ट में आ गए। ये नेक्स्ट सेंटेंस का मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मैंगो स्टार्ट में आ गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, बाय हिम लगा दिया, ही की ऑब्जेक्ट की कंडीशन है हिम, शी की है हर, इट की है इट, हु की है हुम, दे की है देम, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। मैंगोज आ गया स्टार्ट में, बाय हिम एंड पे आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म आ गई ईटन। अब देखिए ऊपर ही था, नीचे आ गया मैंगोज। अब मैंगोज ने डिसाइड करना है, ये वाले सब्जेक्ट ने डिसाइड करना है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है। अब मैंगोज ज्यादा हैं तो हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही नेगेटिव सेंटेंस है ये, ही डज नॉट ईट मैंगोज। अब इसमें भी इसी तरह किया हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ वाई। अब मुझे बताएं कि मैं बार बार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का आपको कह रही हूँ, आपको इतना अंदाजा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में फाइल कहते हैं। और वर्ब कहते हैं एक्शन को, यानी कि फेल को कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, मफूल ऑन विच एक्शन परफॉर्म, जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर वाला सेंटेंस, ही ईट्स मैंगोज, ही क्या है? काम कर रहा है। कौन सा? खाने का काम कर रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खाने का हो रहा है। और क्या खाया जा रहा है? ऑब्जेक्ट, मैंगोज खाए जा रहे हैं। समझ आ गई आप लोगों को? और हमेशा ये भी याद रखें कि ट्रांजिटिव जो होते हैं ना सेंटेंसेस, एक ट्रांजिटिव होते हैं, दूसरे इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस ये है कि ट्रांजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उन्हीं सेंटेंसेस के पैसिवाइज होते हैं। जिनकी नहीं होती वहाँ पर उन सेंटेंसेस के पैसिवाइज नहीं होते, वो इंट्रांजिटिव होते हैं। अब देखें इंट्रांजिटिव क्या है। अब देखें ट्रांजिटिव, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। ही ईट्स, वो खाता है। क्या खाता है? हमें इन पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है ना, कि खाना खा रहा है, मैंगोज खा रहा है, क्या खा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। आई वॉक, मैं सैर करता हूँ। अब इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही। आई रन, मैं भागता हूँ। शी स्माइल, वो मुस्कुराती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं पड़ रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर ही सेंटेंस जो है पूरी सेंस दे रहा है। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव सेंस, जिनकी अपनी सेंस होती है, और जिनकी अपनी सेंस नहीं होती है वो फ्रेज होते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी जो है सेंटेंस अपनी सेंस देता है, ठीक है। दो वर्ड्स के साथ भी सेंस दे रहा है, जैसे कि आई वॉक, ही रन्स, शी वीप्स, द बेबी क्राइज, शी स्माइल्स। अब यहाँ पे सेंस मिल रही है तो हमें तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। अब जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं इनके भी पैसिवाइज नहीं होते हैं, क्योंकि पैसिवाइज उन सेंटेंसेस के होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जिनमें ऑब्जेक्ट लाजमी हो वो ही पैसिवाइज होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, मैंगोज आर ईटन बाय हिम, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आप देखें नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट ईट मैंगोज, ये सिंपल बन गया। मैंगोज आर नॉट हेल्पिंग, राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब आपने नोट लगा देना है। मैंगोज आर नॉट ईटन बाय हिम। डज ही ईट मैंगोज, क्या वो खाता मैंगोज खाता है?
आर मैंगोज। अब देखें सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ बाय, ऊपर क्वेश्चन मार्क था, नीचे भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब मैंगो ज्यादा थे, हमने आर लगा दिया। आर हमने क्यों स्टार्ट में लगाया? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ऊपर भी इंट्रोगेटिव है, हमने जो है क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है और नीचे भी हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर दिया है। आर मैंगोज ईटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। अब WH क्वेश्चन आ गए। वेयर डज ही ईट मैंगोज, वो कहाँ मैंगोज जो है आम खाता है। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि WH क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ। WH क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? वर्ड्स होते हैं, कहने WH वर्ड्स भी कहा जाता है इनको। वेयर, वाई, विच, हाउ, वेयर, व्हाट, इनको WH वर्ड्स कहा जाता है। और WH वर्ड जहाँ पर भी आते हैं, जहाँ भी कहाँ ज़्यादातर ये जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं जब, तो हमने सबसे पहले WH क्वेश्चन को स्टार्ट में लिखना होता है और WH क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पर आया है। अब वो सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने एक्टिव वॉइस को नहीं देखना, अब आपने पैसिव वॉइस को देखना है, क्योंकि आप पैसिव वॉइस कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव वॉइस से देखकर करेंगे तो वो सेंटेंस ही रॉन्ग कंसीडर होगा। अब WH क्वेश्चन की तरफ आए तो वेयर डज ही ईट मैंगोज, वेयर आर मैंगोज ईटन बाय हिम। बाय हिम का भी हमें पता लग गया, ही को कन्वर्ट किया तो बाय हिम आ गया। बाय का तो इस्तेमाल करना था, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है। मैंगोज को वैसे वो आ गया ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पे, और हमने मैंगोज को देखकर सब्जेक्ट जो है हमने आर का इस्तेमाल कर दिया। अब जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वेयर डज ही नॉट ईट मैंगोज। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। वेयर आर मैंगोज वैसे ही, और राइट आफ्टर द मैंगोज आपने नोट लगा दिया, यानी कि ना जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंबाइन आएगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट में लेकर आनी है, WH वर्ड्स भी आपने स्टार्ट में लेके आने हैं। पहले WH वर्ड, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपने नोट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और नोट का इस्तेमाल करने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं, बाय का इस्तेमाल करें, फिर उसकी सब्जेक्ट जो आप ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए हैं तब आपने क्वेश्चन मार्क और उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन लिखनी है। ही की ऑब्जेक्टिव कंडीशन हिम थी, तभी हमने यहाँ पर हिम लिख दिया, और ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था तो हमने नीचे भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब ये भी एक एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट की थी कि आप उसी एग्जाम्पल की तरफ ना रहें, ये भी हम देख लेते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र भी आ रही है। ही ओपन द डोर, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओपन यहाँ पे वर्ब है, ओपन द डोर, द डोर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखें, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट। दी डोर को स्टार्ट में ले आए और ही को बाय हिम में ले आए, कन्वर्ट कर दिया हिम में। ही की ऑब्जेक्टिव कंडीशन हिम थी और उससे पहले हमने हिम का इस्तेमाल कर लिया। और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या थी? ओपन्ड, ईडी का इस्तेमाल कर दिया हमने। अब ऐसे नहीं लगाना आपने, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। अब दी डोर जो था वो एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, दरवाजा। ही ओपन द डोर, वो दरवाजा खोलता है, तो दी डोर
ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमने इज का इस्तेमाल किया है। एक इस एग्जाम्पल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ही ईट्स एप्पल्स, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। अब इसका रूल सेकंड क्या था, पैसिव वॉइस में हमेशा फेल की यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, आपने ये करनी है। I hope so, students and my dear fellows, uh, you have understood all the points which I have discussed in this video. Please subscribe this channel. Don't forget to like, comment and share the video. इस चैनल पर जो है 9th-10th के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। 9th-10th के टेक्स्ट बुक के और ग्रामर बुक के दोनों के लेक्चर्स मौजूद हैं, जो आपके कज़न्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आप और ऐसे लोग जो बेसिक ग्रामर सीखना चाहते हैं या बिगनर्स हैं, वो भी इस चैनल से जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक ग्रामर और टेंसेस के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसलिए वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ख़ुद भी देखनी है और दूसरों को भी कहना है। और इसके अलावा आपने बाकी वीडियोस भी देखनी है जो कि चैनल पर मौजूद है। इस देखने के बाद आपकी ग्रामर और टेंसेस में बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।